morning. My name is Dr. Shubhashri Patil. I am a practicing diabetologist, practicing in Andheri East, Mumbai from past 10 years. Today, the topic of discussion here is hypertension. Hypertension is nothing but high blood pressure. Why we need to discuss about high blood pressure is because it is one of the major lifestyle illnesses which is in increasing trend these days. Previously, it was always thought that blood pressure is a geriatric problem, that is, problem of the patients whose age group is more than 50. But this is not the case. So, recently, all the physicians who are practicing like me have been noticing that blood pressure is recorded at earlier and earlier age groups. We are having people who are presenting to us in the age group of their 20s, early 30s with high blood pressure problems. Why this is happening? It is a lifestyle disease. So we have to understand that somewhere our lifestyle is something that is responsible for high blood pressure levels. Most of the factors which contribute to high blood pressure are our sedentary lifestyle. Most of us are sitting whole day on our laptops, working from offices. Most of the time, we are not able to have adequate physical activity due to lack of time. The second is obesity, increasing weight. A trend of eating more of junk food like burgers, pizzas, pasta, saturated fats which are going in our body. So plus family history, maybe our parents, either of our parents or sibling are already having blood pressure as one of their illnesses. So that is something which is causing us a genetic predisposition to having a higher blood pressure. High stress, there is a traffic jam, there's a stress, there is an office, lot of work, there's a stress. So lack of sleep, there's a stress. So this stress in itself is contributing to high blood pressure levels. So we have to understand that these changing lifestyles have been contributing to higher side blood pressure level. So let us first understand that what is high blood pressure level? High blood pressure मतलब क्या? आमतौर पर जब हम बीपी चेक करते हैं पेशेंट्स का, तो there are two components of blood pressure. One is systolic and one is diastolic. So systolic blood pressure और diastolic blood pressure ये हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं जब ब्लड प्रेशर 120 और 80 से नीचे रहता है. अगर कोई भी ब्लड प्रेशर 120-80 से ऊपर रिकॉर्ड होता है तो हमें देखना पड़ता है कि ये क्यों हाई रिकॉर्ड हो रहा है. ब्लड प्रेशर मतलब क्या रहता है? हमारा जो रक्तवाहिका है जिसके अंदर से हमारा खून दौड़ता है, वो जो प्रेशर आर्टेरियल वॉल पे एक्सर्ट करता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे आर्टेरियल वॉल थिक होते जाते हैं और ये जो प्रेशर आर्टेरियल वॉल पे जो डेवलप होने लगता है ये बढ़ने लगता है, तो इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलने लगते हैं. What is the need? क्या जरूरत है कि मैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर लेवल को टारगेट करूं? What is the need? If I'm okay, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो क्या जरूरत है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या मेरा ब्लड प्रेशर चेक करूं? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर धीरे धीरे हाई होके हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारे ब्रेन के सर्कुलेशन, साथ साथ में हमारे आंखों के ब्लड सर्कुलेशन पे असर डाल सकता है. साथ में ही भारी मात्रा पे कॉम्प्लिकेशंस जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिसीजेस या रेटिनोपैथी, इन सब प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है. अगर हमें इन कॉम्प्लिकेशंस को एक्सपोज नहीं होना है तो हमें ब्लड प्रेशर अच्छे से अच्छा कंट्रोल में रखना पड़ेगा. इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको एक रेगुलर डॉक्टर के पास फॉलोअप विजिट रखने की जरूरत है जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर सिटिंग पोजीशन में नापा जाए, जिसमें मशीन को हम लोग डॉक्टर के क्लिनिक पे यूज करते हैं उसको बोला जाता है स्पेनियानो मैनोमीटर या मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर मशीन, जिससे हम लोग बीपी मेजर करते हैं. आपका ये ब्लड प्रेशर जो हम क्लिनिक में रिकॉर्ड करते हैं काफी हद तक एक्यूरेट रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ आजकल बहुत इजीली अवेलेबल ब्लड प्रेशर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स घर में अवेलेबल है जिससे आप घर में भी ब्लड प्रेशर चेक रख सकते हैं. सिंपल से मेजर है कि आपको ये मशीन आपके हाथ में बांधनी है, एक बार में 3 रीडिंग्स लेनी है एंड द एवरेज ऑफ दीज 3 रीडिंग्स इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर एक्चुअल ब्लड प्रेशर रीडिंग्स. सो अगर आप ये सिंपल मेजर फॉलो करें और ब्लड प्रेशर के ऊपर एक चेक रखें एंड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ योर डॉक्टर कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर हाई हो रहा है, तो आप टाइम पे इसका इलाज कर सकते हैं विदाउट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशन एंड देन लेटर ऑन रियलाइजिंग कि कॉम्प्लिकेशन सेट इन होने के बाद मैंने ब्लड प्रेशर का इलाज शुरू किया. तो अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है तो मुझे क्या सिम्टम्स आ सकते हैं ये भी डिस्कस होना जरूरी है. जनरली हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर? बिकॉज यू मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स, you may be asymptomatic, still the blood pressure may be high.
So what we understand is that we have to first and foremost we have to keep screening ourselves. मतलब despite whether you have symptoms or you don't have symptoms, you have to keep checking. सिम्टम्स काफी हद तक सटल सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे कुछ पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं कि आई एम वेरी फटीग, मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, मुझे कांस्टेंट हेडेक होता है, मॉर्निंग में उठने के बाद मेरा सर थोड़ा भारी रहता है, गिडीनेस होता है, थोड़ी चक्कर जैसा लगने लगता है, नेक या सर का एरिया काफी हद तक भारी लगता है, किसी किसी को अगर बीपी बहुत हाई रहता है तो नॉस्टिएटेड मतलब उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है, गिडीनेस आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स भी ब्लड प्रेशर की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल इलनेस है, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या आपकी ब्लड शुगर हाई है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे ही एक ही स्पेक्ट्रम के बीमारियां हैं। अगर आपको ये एग्जिस्टिंग दो बीमारियां हैं तो चांसेस है कि ब्लड प्रेशर भी आ सकता है। तो आपकी अलर्टनेस लेवल या आपकी कॉन्शियसनेस लेवल टुवर्ड्स स्क्रीनिंग ब्लड प्रेशर शुड बी more on the higher side. You have to ensure that you screen little more better than others. अब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सपोजिंग अगर ब्लड प्रेशर के इश्यूज आपको पता चलते हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। सो आपकी लाइफस्टाइल पे सबसे पहला काम करना शुरू करना है। एक डॉक्टर के फॉलोअप के बाद आप वो सारी चीजें करना शुरू करिए जो आपने शायद मिस करने की वजह से इस बीमारी को इन्विटेशन दिया है। जैसे स्टार्ट फॉलोइंग अ गुड हेल्दी डाइटरी रेजिमेंट। मेक श्योर कि आपका सॉल्ट इनटेक कम से कम रहे, जितना खाने में कम नमक रख सकते हैं उतना कम नमक रखिए। ऊपर से सैलड्स या इसकी ड्रेसिंग में ज्यादा का नमक ना यूज करें। साथ ही में नमक एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होने वाली चीजें जो रहती हैं, जैसे आपका पापड़ हो गया, आपका अचार हो गया, इन सब चीजों का सेवन भी थोड़ा कम कर दीजिए। एक रेगुलर खुद के लिए एक्सरसाइज रेजिमेंट बनाइए, जिसमें आप 45 मिनट्स वॉक, या आपको अगर जिम पसंद है जिम, या यू कैन इंडल्ज इन एनी स्पोर्ट एक्टिविटीज, यू कैन इंडल्ज इन स्विमिंग, जॉगिंग, zumba, anything, any good physical activity is welcome. Cardio activities are most welcome. अगर इससे आप एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिमेंट बनाएंगे तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कम रहेगा। सैचुरेटेड फैट का इंटेक, जैसे बाहर से पिज्जा, पास्ता, बर्गर, केक्स, ये सारी चीजें थोड़ी आपके डाइट में कट डाउन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली इनएक्टिव है तो आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, एक स्टेप काउंट रखना शुरू करिए कि आप दिन भर कितना वॉकिंग कर पा रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आपका वजन ज्यादा है तो ट्राई वर्किंग एट योर वेट। मेक श्योर कि आपका वेट और बीएमआई जो है वो डिजायर्ड लेवल तक पहुंचे। आप कॉन्स्टेंटली एक एफर्ट रखें टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल, गोइंग टुवर्ड्स बीइंग मोर हेल्थियर एंड हेल्थियर। ये सब चीजें, और साथ में आपके डॉक्टर का एडवाइस रखिए। एक बेसिक हेल्थ वर्कअप साल में एक बार करवा लीजिए। अगर जरूरत लगती है कि आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना जरूरी है तो उससे आप भागिए मत। इफ इट इज एसेंशियल, मेक श्योर कि आप अपना डाइट, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें एक्टिवली करते रहे। साथ में अगर ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेनी एब्सोल्युटली जरूरी है तो उसका टाइम आप फॉलो करें, मेडिसिन टाइम पे ले, ब्लड प्रेशर स्क्रीन करते रहे। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो ये मेडिसिन आपकी टेपर करके वो बंद भी कर सकते हैं। सो डोंट बी एब्सोल्युटली होपलेस सिचुएशन कि एक बार गोली शुरू हो गई तो अभी कभी बंद नहीं होगी। It totally depends on you and your motivation level, how well you handle the situation. बट हमें ये याद रखना है कि ब्लड प्रेशर को इग्नोर करके, उसकी तरफ ध्यान ना देके हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस इनवाइट नहीं करने हैं। So even if you're young, my suggestion is that make sure that you stay health conscious, alert, you proactively take good care of your diet, lifestyle, screen yourself on a regular basis, buy a simple blood pressure machine at home, keep screening you and your family members on a regular basis towards blood pressure screening. We have to ensure that हमारी younger generation जल्द से जल्द मेजर बड़ी बीमारियों के से जल्दी प्रभावित ना हो या अफेक्ट ना हो। इसके लिए ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, अवेयरनेस, एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आई होप आज का जो ये मैंने छोटा सा टॉक दिया है ब्लड प्रेशर के ऊपर का, इससे आपको थोड़ा फायदा हो और आप और अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल हैंडल करें और ब्लड प्रेशर की तरफ जागरूक रहें। Thank you so much for patient hearing.